Origin next one says Pakistan versus UAE. Move from USA. Would appreciate your thoughts. Salam Junaid Bhai, hope you're doing well and in good health. Long time listener here. Just wanted to say I've always connected deeply with your content. I see a lot of myself in your journey. Introverted by nature, came from the bottom, hustled through every phase of life, and Alhamdulillah, eventually built a very comfortable lifestyle. Your perspectives have always resonated with me on a personal level. I'm a fellow Pakistani based in Orlando, Florida, 35-year-old US citizen married with a young daughter. I left Pakistan at 19, started from the ground up, doing all kinds of odd jobs in the UK and eventually made it to the US at 26. Alhamdulillah, after a long hustle, I've built a successful business and reached financial freedom. Self-made multimillionaire net worth, living in a very comfortable and flexible lifestyle. My wife, who is also working, and I've been working remotely for years. Life here is peaceful, luxury home in the most affluent neighborhood in the city. Time, freedom, vacations, and lots of family time. But lately, we've been seriously considering relocating either back to Pakistan or possibly the UAE. With our setup, we could easily buy a fully paid home in a top neighborhood in Pakistan and generate 2 to 3 million rupees monthly income from US based investments without lifting a finger. The main reason for this shift is thinking is cultural. We want our daughter to grow up closer to our values. While we've integrated well here, long-term concerns like the move out at 18 culture and the broader social values give us pause. I know you have strong networks in Pakistan and also deep exposure to both UAE and US lifestyles. Would truly appreciate your honest thoughts on the pros and cons of relocating to Pakistan versus moving to the UAE. What would you do if you were in our situation? Also, if you're ever in the US again, would love to host you in Orlando. Would be an honor. Thank you. Inshallah, I'll be there very very soon. अच्छा, जब आप कहते हैं कि the culture that you're trying to escape, so what do you mean? Dating, LGBTQ, trans, sex before marriage, ये वाली चीज़ें, because लोगों का concern ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के अराउंड होता है. अब recap अगर दूं तो भाई ये जो लोग सुन रहे हैं, एक भाई हैं, बहुत मेहनत करके यूके के रास्ते से फिर अमेरिका, और अब 35 साल के हैं. बेगम भी अच्छे प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, अच्छे कमाते हैं. बेटी अभी छोटी है, बट जाहिर है वो उसने फिर बड़ा भी होना है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए 20 से 30 लाख रुपए महीना आराम से इनकम जनरेट इनकी हो सकती है, और पाकिस्तान में किसी भी पॉश एरिया में रहने के लिए ये रकम काफ़ी है, विच इज़ गुड. ना अब इसमें दो चीज़ें हैं, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि या तो ये या यूएई, बिकॉज आपका एक्सपोजर है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके कंसर्न्स हैं ना, जो कल्चर से रिलेटेड होते हैं, लेट मी ब्रेक इट टू यू. पाकिस्तान के एफ्लुएंट इलाके, अगर आपको लगता है ना वेस्ट लिबरल है, तो पाकिस्तान के ऐसे भी इलाके हैं जो वेस्ट से ज़्यादा लिबरल है. देखिए, जहाँ सख्तियाँ होती हैं ना, वहाँ के लोग उतने ही आउट होते हैं, उतने ही आउट होते हैं. ईरान की अगर हम मिसाल दें, अब यहाँ पे शिया हजरात नाराज़ होंगे, बट आई हैव हैड फ्रेंड्स जो वहाँ 6-6 महीने रहे. और एक ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो एक बड़ी कॉरपोरेशन में काम करते थे. सॉरी, कॉल आ रही है. वो एक बड़ी मल्टीनेशनल में काम करते थे. उनका 1 साल का प्रोजेक्ट था ईरान में, एंड वो कहते हैं कि जितनी पार्टी मैंने ईरान में की, और ज़बरदस्त पार्टी, शायद ही कहीं की हो, और लाइक अल्कोहल भी खुला डुल्ला, मतलब कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बाहर सख्तियाँ हैं, बट घर के अंदर जो है ज़बरदस्त माहौल है, एंड लाइक ही हैड अ ग्रेट टाइम देयर. सो अगेन, लाइक आई सेड, जितने कंजर्वेटिव इलाके होते हैं, फिर वहाँ लोग उतना ही ज़्यादा ज़ोर से आते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? ये कहना कि पाकिस्तान में आप आएंगे तो वो कल्चर वैल्यूज, देखिए, सो माई रीज़न फॉर नॉट ब्रिंगिंग किड्स हेयर इज़ ड्रग्स. पाकिस्तान में ड्रग्स आर रैम्पेंट, और पिज़्ज़ा से पहले ड्रग्स आ जाती हैं. मतलब क्या सॉफ्ट क्या हार्ड जो बोलो, घर पे डिलीवर होती हैं. इतने आप केसेस देख भी रहे हैं पाकिस्तान में. जो अरमगान वाला केस है, कितना 20 साल का बच्चा है, 20-20 अरब रुपए आगे पीछे करता रहा है, वो कितना कमा रहा होगा वो. और ये दिस लाइक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो लाइक अगर आप इन सर्कल्स में जाएं, बड़ा बैड सीन है. तो ड्रग्स तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा इशू है. और अभी जाहिर जाफ़र वाला केस दोबारा सामने आया है कि उसकी वो जो डेथ पेनल्टी है वो अब होल्ड की है कोर्ट ने. या वो भी ड्रग रिलेटेड केस था. यहाँ तो बड़ा ऑफ सीन है ड्रग्स को लेके, और लाइक अवेलेबिलिटी इतनी आसान है. मेरा ये कंसर्न है यहाँ पे. बाकी रही बात कल्चर वगैरह की, तो भाई अमेरिका की सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज तेलुगु हो गई है, तो देसी तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, देसी कल्चर आपको वहाँ भी मिल जाएगा. यूएई मुझे मिडल ईस्ट इसलिए ज़्यादा समझ आता है, अगर तो आपने अपना पासपोर्ट स्कोर कर लिया, एंड आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय वीडियोस, इफ़ यू स्कोर्ड योर पासपोर्ट, मिडल ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव. कंसिडरिंग अगर आपको ईस्टर्न बैलेंस वैल्यूज़ चाहिए,
अजान की भी आवाज़ आती रहे, रमज़ान हो तो रमज़ान फील भी हो ना, ये भी तो हो, तो वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। कानून बेहतरीन है ख़वातीन के लिए, इट्स लाइक द सेफेस्ट कंट्री। रात को आराम से घूमें, कोई टेंशन नहीं, कोई छेड़छाड़ वाला नहीं है। और अगर होता है तो फिर वो रिपोर्ट भी ऐसा होता है और बंदा गायब। तो इट्स अ ग्रेट प्लेस, सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज दैट। हाँ, गर्मी वगैरह है, महंगाई है, बट चूंकि महंगाई इज़ नॉट योर कंसर्न, जब आप 2-3 मिलियन रुपीज़ आराम से विदाउट लिफ्टिंग फिंगर एज यू सेड कर सकते हैं। सो विद अ चाइल्ड इन UAE यू कैन बी कंफर्टेबल इन 25 से 30 हज़ार दिरहम महीना, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 300, हाँ 2 मिलियन अराउंड। सो हाँ, आराम से आप वो कर सकते हैं। स्कूलिंग महंगी है, और मगर ये कि सिंस पैसे इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, तो ये चीज़ है। बाकी देखें, पाकिस्तान में अगर आप पॉश से पॉश इलाके में भी रहें, लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपके पास पैसा है तो पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम बाय आउट कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिक्योरिटी का इशू है, गार्ड रख लो, वीगो डाले ले लो, प्रोटोकॉल लगा लो, बड़ा जनरेटर ले लो, बिजली नहीं जा रही तो वो सब तो आप कर लोगे। AQI का क्या करोगे? इस वक्त भी कराची में जो है ना 300-400 AQI चल रहा है। ये जो मैं बार बार गला मेरा ख़राब हो रहा है, वो यही तो हो रहा है। एंड दिस इज़ लाइक स्लो कैंसर, स्लो पॉइजन। व्हाट अबाउट दिस? तो क्या फ़ायदा इतने पैसे का कि अगर आप 500 AQI में बच्चे को रखना है? दैट इज़ समथिंग पीपल नीड टू। क्लाइमेट लोगों का कंसर्न ही नहीं होता। कंसर्न लोगों का होता है कल्चर वगैरह, ये वो। भाई क्लाइमेट को भी अब ज़रा आप मॉनिटर करना शुरू करें यार, ये भी एक कंसर्न ज़िंदगी में ज़रूरी है, बिकॉज इट टोटली अफेक्ट्स योर लाइफ। भाई क्या फ़ायदा लाहौर के पॉशेस्ट इलाके में 5 कनाल का घर लेना, जहाँ का बाहर AQI 600-800 1000 1200 है, 20 सिगरेट पी रहे हो रोज़ भाई तुम सांस लेके, तो क्या फ़ायदा ऐसे AQI? तो गो टू अ प्लेस विच ऑफर्स एवरीथिंग। तो वो UAE वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। को कल्चर भी मिलेगा, रिलीजियस वैल्यूज़ भी आपको वहाँ मिलेंगी। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ईस्ट और वेस्ट। आपके ऊपर चॉइस है कि आपने उसी जुमेरा रोड पे, जहाँ लाइन से क्लब भी हैं, उसी जुमेरा रोड पे आप 2 दिसंबर स्ट्रीट, जो जहाँ पे लाल किला है, वहाँ से लेके ऑल द वे टू बुर्ज अल अरब, ये बहुत लंबी सड़क है, राइट। एट एनी पॉइंट यू स्टैंड एंड यू टर्न अराउंड, यू सी अ मॉस्क एट एनी पॉइंट। उस पूरी रोड पे इतनी मस्जिद है माशाल्लाह से, दोनों साइड पे, कि आप कहीं भी खड़े हो, चाहे वो आप जो है शुरू में, यार कौन सा आता है होटल, मैं भूल गया यार, आई हैवंट बीन ऑन दैट रोड इन अ वाइल, वहाँ क्लब, बुधवार क्लब जहाँ था यार, तो वहाँ से आप जाते रहें एट एनी पॉइंट ऑन दैट रोड टिल बुर्ज अल अरब, यू टर्न अराउंड, यू सी अ मॉस्क। क्लब्स भी उतने ही हैं, समझ रहे हैं? तो दोनों चीज़ें, यहाँ जाना है यहाँ जाओ, यहाँ जाना है यहाँ जाओ, इट्स अप टू यू। तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेस। बाकी कल्चर का मतलब, अगर आपका लैंग्वेज, आर्ट, म्यूज़िक, फूड है, तो ये भी आप हर जगह मिल ही जाता है, मोर और लेस। आई have invited my son for Bakra Eid to show him that culture, of course not the slaughtering part, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ दिखाना मेरी नज़र में उनको डिसेंसिटाइज करता है, ठीक है ना। अगर बच्चे जिस बकरे से खेल रहा है 5 दिन बाद उसी पे छुरा हो रहा है, आई थिंक ये हम बच्चों के साथ बड़ा जुल्म करते हैं। और कितनी वीडियोस आती हैं, बच्चे वो देख के रो रहे होते हैं। भाई बड़े हो जाएं तो बता दो सेंटा क्लॉज रियल नहीं है, बचपन में बताओगे तो बच्चा हर्ट होगा, और आप उसको वो क्यों कर रहे हो यार, ट्रॉमा क्यों दे रहे हो? तो सो या वो नहीं, वो वाला पार्ट नहीं, बट खेल ले ज़रा जानवरों वगैरह से। सो या तो ये छोटी मोटी एक्सरसाइज है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, पाकिस्तान इज़ अमेजिंग। अगर आप 2 हफ्ते के लिए आ रहे हो, 2 हफ्ते आएँ, दबा के कोलाची खाएं, वहीद कबाब खाएं, कबाब फ्राई, बंस रोड, ये वो फलाना ढिमकाना, दोस्तों से मिले, शादी में रंगीलो मारो ढोलना, और फ्लाइट पकड़ के वापस। बेस्ट प्लेस एवर, इससे अच्छी जगह नहीं है यार। सस्ती तरीन यार। आई टुक माई फ्रेंड फॉर आज़ाद बन कबाब, बंस रोड पे। आई आस्क्ड हिम कि अच्छा, ये भी नहीं कि वो बाहर से आया तो उसका कोई नहीं, इस्लामाबाद का दोस्त था। हम 3 लोगों ने खाए, दो बन कबाब, 6 बन कबाब और 3 कोल्ड ड्रिंक। मतलब कितना बिल बना होगा? उसने बोला 2000-2500। अबे 600 भी नहीं बना था। सो वो सर पकड़ के बैठ गया। हमने $1.5 में 3 लोगों ने खाना कैसे खा लिया? खाया, सॉरी $2 में, $2.25, राइट। बेस्ट प्लेस मैन, बट 2 हफ्ते के लिए, जहाँ आप इस मुल्क का पार्ट बने, जहाँ बिजली, पानी, गैस के चक्कर लगे आप, फिर रुल जाओगे आप। सो आई विल नेवर सजेस्ट। बाकी लाइक आई सेड, यू कैन बाय आउट ऑल द प्रॉब्लम्स हेयर।
यहाँ लोग हैं बादशाहों की तरह रहते हैं. They're living in third world country but having a first world lifestyle, right? Because they've bought out all those problems. मगर जब सड़क पे आएगी गाड़ी तो फिर वही खड्डे हैं, पॉट होल्स हैं, ट्रैफिक है, गंद है, कभी भी मुल्क बंद हो जाएगा, आग लग जाएगी, कंटेनर लग जाएंगे. ये फिर है. अगर आपने साइलो में रहना है, गेटेड कम्युनिटी में रहना है और आपकी पूरी ज़िंदगी वो गेटेड कम्युनिटी ही है, बेस्ट है. मैं निदा यासिर के घर गया था. शी लिव्स इन अ गेटेड कम्युनिटी. आई एम नॉट गोना नेम विच वन. तो जो मेरा इंटरव्यू था उनके साथ, अगर आपने नहीं देखा देखिए, बड़ा फनी है. तो बाहर बेड़ा गर्क था सड़क का. मतलब झाड़ियों में जो थैलियाँ लटकी हुई थी ना, वो थैलियाँ उस दिन की नहीं थी, वो कई हफ्तों, क्योंकि उस पर जितनी मट्टी थी ना, तय लगी हुई थी मट्टी की. पहले ये थैली नहीं है, ये थैली अरसे, यानी इसको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, इन झाड़ियों को. नोबडी इज लुकिंग आफ्टर. और ये दीवार के बाहर, दीवार के अंदर बच्चे ट्राईसाइकिल चला रहे हैं, गेट्स खुले हुए हैं, आंटियां यूं आ रही हैं, लड़कियां यूं जा रही हैं. भाई वेस्टर्न ईस्टर्न सब पहना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अनदर वर्ल्ड. दिस इज वाई कराची इज अ मेस. क्योंकि जब मेस क्रिएट करो ताकि पीपल आर फोर्स टू बाय ट्रिपल प्राइसेस में गेटेड कम्युनिटी के घर, तो कराची इज अ गेटेड कम्युनिटी. सो गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही अगर आपकी पूरी दुनिया, फॉर एग्जाम्पल माई गुड फ्रेंड्स पेरेंट्स लिव इन बैरियर टाउन. सो उन्होंने कहीं आना जाना नहीं है, रिटायर्ड हैं, उनकी एक बेहतरीन लाइफ है, शाम को वॉक पे जाते हैं वगैरह वगैरह, घर पे काम वाले आते हैं, वो काम करते हैं, लिविंग द बेस्ट लाइफ. या फिर वो लोग जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको बस शहर में एक बार आना है हफ्ते में, कहीं खाना खाना है, टीपू सुल्तान इधर उधर आ गए तो आ गए, वरना वहाँ पे सब है. तो लाइफ जब तक गेटेड कम्युनिटी के अंदर है बेहतरीन है. इट इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान बट पाकिस्तान. कॉस्ट पाकिस्तान वाली है मगर मज़े बाहर वाले हैं. यप. सो ये सीन है. मगर फिर जहाँ बात आएगी AQ आएगी तो भैया हवा तो फिर हर जगह ही आएगी. तो स्मॉग आपके घर में भी घुसेगी, फेफड़ों तक जाके ही जान छोड़ेगी. तो फेफड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उस पॉइंट पे आई वुड से UAE. And yes, drugs are very, very rampant. If you are considering bringing your kids here for long term, please keep a strong eye. Slip होते देर नहीं लगती और ये यंग कॉलेज के और स्कूल के बच्चों के थ्रू ही रन कराई जाती है. I know so many people who know those kids. 9-10 के बच्चे ड्रग्स बेच रहे हैं. क्यों बेच रहे हैं? पहले उनको लगाते हैं जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, क्योंकि बच्चों पे कोई शक नहीं करता ना. अब बच्चे ने बैग पहना हुआ है, कौन शक करेगा कि इसके अंदर कोकेन रखी हुई है? वो बोलेंगे हाँ किताबें हैं, थर्मोस होगा, व्हाटएवर लंच बॉक्स होगा, जो भी है, वो कोकेन लेके इधर से उधर जा रहे हैं. पहले बच्चों को लगाते हैं फ्री में, पियो पियो पियो, पार्टियों में आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ. ठीक है, जब वो हो गया, जब बच्चे एडिक्ट हो गए, चल भाई और चाहिए तो बेच. तुझे तभी मिलेगी जब तू ये बेच के इतने पैसे लाएगा. उनको टारगेट देते हैं, वो टारगेट मीट करते हैं, उनको फिर मिलता है. एंड लाइक पॉलिश बच्चे, A levels O levels, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले, सब कुछ आप देखोगे आपको लगेगा नहीं. सो हु वुड हैव थॉट यार, साजिद हसन को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी अपनी औलाद ड्रग रनर निकलेगी. और ऐसा हो नहीं सकता उनको पता नहीं होगा. यार आपकी औलाद ये काम कर रही है, आप घर में रहते हो और आपको ही नहीं पता आपका बच्चा करता क्या है या पैसे कहाँ से आ रहे जा रहे हैं. सो या मैन, ये सीन बड़ा बैड है. सो आई वुड सजेस्ट UAE बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई वुड चूज़. बाकी लोगों के जो भी रीजंस हों वो अपनी जगह. मेरा अगर आप ओपिनियन मांगते हैं तो आई वुड चूज़ UAE. आई वुड नॉट चूज़ पाकिस्तान फॉर दीज मैनी रीजंस. और अभी वॉर भी होने लगी थी, ड्रोन भी आ रहे थे, तो फिर अब देखें ना, अब आप जितने बड़े घर में रहें, अगर फिर ये ख़तरा हो कि भाई ड्रोन ना आ जाए, अब इंडिया बात बात पे नाराज़ होगा, भेजेगा. ये भी आप देख लीजिएगा. ये अब एक ट्रेंड सेट हो गया है कि यार यहाँ तक तो अब हम जा सकते हैं. तो अब जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन अब जब भी होगा आगे से रिएक्शन ये होगा, भाई मारो, ब्राह्मोस निकालो, वो अनकट ब्राह्मोस ना, अनसर्कमसाइज जो होता है इनका, वो मारो या ड्रोन भेजो. अब बात बात पर ड्रोन ना आया करें यार, यहाँ पे अल्लाह रहम करे. खैर, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, एवर सिंस द वॉर, उसके बाद से दूसरे भी जो इंडिकेटर्स हैं, द वे द वर्ल्ड हैज़ रिएक्टेड टू इट वगैरह वगैरह, द एयर ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एंड अमंग पाकिस्तानीज इज़ फैसिनेटिंग. इट्स अमेजिंग. ठीक है, देखिए वैसे ही इस मुल्क को खुशियाँ नहीं मिलती, तो दिस वॉज लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट. नो डाउट आपसे 6 गुना बड़ा मुल्क है यार, विद 60 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज, और आपने डिफेंड किया अपने आप को, राइट. सो इट्स लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट. एंड फिर दुनिया ने आपको एक्नॉलेज भी किया. अच्छा, फिर आई मेट सम पीपल, द हुज हु,
मैं ज़ाहिर है ना उनका प्रोफेशंस बता सकता हूँ, ना उनके इदारे बता सकता हूँ, ना नेशनैलिटी बता सकता हूँ, बट लाइक उनका आना जाना लगा रहता है, मिलते हैं बड़ों से और बातें बातें करते हैं, वो बता रहे हैं यार लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, द नंबर्स आर ग्रेट, द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ग्रेट, बस ये कि प्रिवेलिंग रहे डेमोक्रेसी, ये चलती रहे तो लाइक द साइंस आर ग्रेट। मतलब जो भी क्या 4 ट्रिलियन का क्या मैं भूल रहा हूँ इकोनॉमी और अभी नंबर्स रिलीज हुए हैं, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, 4 ट्रिलियन अनडॉक्यूमेंटेड भी है, विच इज़ ग्रेट नंबर फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और फिर माइंस मिनरल से रिलेटेड जो पोटेंशियल है, द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग दैट, सो पाकिस्तान कुड बी इन गुड हैंड्स एंड कुड बी इन मच मोर, मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में तो है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही रहे। ये कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा कम हमने ज़िंदगी में देखा है, एंड this has happened after a very long time. So not just the people in the power corridors are saying this, but also like देखिए डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना सोसाइटी के, फौज होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, फिर आपकी सिविल सोसाइटी होती है, आपका लॉ होता है, वगैरह वगैरह, डिफरेंट कॉरिडोर्स होते हैं, ये सब बन के एक मुमलिकत बनते हैं, राइट? सो नॉट जस्ट गवर्नमेंट रिलेटेड, but like people who are directly or indirectly related or located or work around these areas. Let's say Islamabad, the air of confidence around Islamabad is magnificent. People who have been there recently and met the right people, तो वो एक अच्छी अल्लाह नज़र ना लगाए और ऐसा ही चलता रहे, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अब ये कि ये सिलसिला भी चलता रहे, बहुत पोटेंशियल है यार इस मुल्क में, we've never denied that. It's just that आप जितनी भी बेहतरीन आइडिया लेके जाओ, जिसके पास लेके जाओगे उसको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि वो बैठा कहाँ है, लेट अलोन कि आपका आइडिया क्या है। और यहाँ मसला होता है, इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है, लोग अपना पीएचडी ये वो फलाना ढिमकाना लेके फिर बाहर मुल्क जाते हैं, बाहर मुल्कों को बेहतरीन फिजाओं में ले जाते हैं और अपना मुल्क पीछे रहता है, ये मसला है। सो आई होप यार ये सैनिटी प्रिवेल्स और अच्छे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हों, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस ये कि जो हमारा एक पीछे सिलसिला चलता आ रहा है ना, उसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रेडिकलाइजेशन है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, ऑलरेडी मुश्किल में है। सो या अल्लाह रहम करे, बट लाइक सो पीपल who I have spoken to in the last 1 to 2 weeks have said wonderful things. I wish कि मैं सारी चीज़ें शेयर कर सकता, कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती, आप समझदार हैं, लेकिन ये कि साइंस आर वेरी वेरी गुड, और मुझे बड़ी खुशी हुई वो बातें सुन के। और जाहिर है मुल्क से प्यार है यार, तो ज़रा इंसान जज्बाती भी हो जाता है। सो लेट्स स्टे होपफुल और दुआ भी करें, लेकिन दुआ के साथ अमल भी फिर पूरा करें। सो लाइक आप लोगों ने भी अब अपना पार्ट करना है ना यार, टैक्स वैक्स भरो यार। अब वो खबर आ रही है कि भाई यूट्यूबर्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो मुझे एक चैनल ने रीच आउट किया, आप क्या कहेंगे? मैंने हाँ ठीक है लगाओ। बिल्कुल, टैक्स कब से बुरा हो गया यार यही अगर मैं नॉर्वे में कर रहा होता, मैं 40% दे रहा होता ना, वो दे क्या रहा होता, वो काट रहे होते ऐसी की तैसी, वहाँ हम देते, ठीक है? तो यहाँ भी दे। अब ये कहना जी वहाँ सहूलतें मिलती हैं, यार यहाँ भी शुरू होंगी, तुम देना तो शुरू करो। सैलरीड क्लास, सॉरी यार मैं कहाँ से कहाँ निकल गया हूँ, सैलरीड क्लास जो है 450 बिलियन रुपीस टैक्स देती है, और रिटेलर सिर्फ 26 बिलियन देता है। दुकानों की प्राइसेस देखो, दुकानों का कारोबार देखो, और ये सारी दुकानें मिला के 26 अरब देते हैं, और सैलरीड क्लास पाकिस्तान की बेचारी इनका सोर्स पे कटता है 450 बिलियन देता है। क्या यार? तो वो यूट्यूबर पे कह रहे हैं जी 3% लगा रहे हैं। मैंने बिल्कुल लगाएं। यूट्यूबर जब हर महीने गाड़ी से लाल कपड़ा यूं हटाएगा, 8-8 करोड़ की गाड़ी दिखाएगा, तो लगाओ ना टैक्स उस पर। टैक्स कब से बुरा हो गया यार? सोर्स पे लगाओ। और वैसे हमारा टैक्स, जो लोग जानना चाहते हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक इनकम आती है वो सोर्स पे ही 1% कटती है। स्टेट बैंक डॉलर रखता है 1%, लेट से अगर $5,000 आए हैं तो $50 स्टेट बैंक काट लेगा, और बाकी जो बचेगा 4,950 उसके PKR दे देता है, तो 1% सोर्स पे कटता है। तो उसको अब वो 3.25% करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करें यार, 5% करें, खल्ली वल्ली, अपना मुल्क है यार, इसी से कमाते हैं ना, तो देने में क्या हर्ज है? 60 लाख का वेड़ा ले आएंगे उठा के, अभी मुल्क को नहीं देंगे। अजीब लोग हैं यार। तो भाई दें मुल्क को यार, मुल्क को ज़रूरत है, वो मुल्क ऐसे ही आगे जाएगा। नॉर्वे में दे देते 40%, यहाँ नहीं देना बस। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।